Welcome to the second part of our computer, that is category of computer and computer languages. In our previous video we had just seen the categories of the computer, that is microcomputer, mini computer, mainframe computer and supercomputer. So in this we are going to learn about computer languages. Computer languages. Let us just define this definition, that is a computer language is a set of command which is used to develop program for computer. Now, what is language? A language is a way to communicate, express our feelings to other persons so that everyone could understand each other in better way. It is important that both the parties should understand the same language to be able to communicate effectively. As we use language in our daily life to communicate our ideas, feelings to the other persons, in the same way computer language is used to give instruction to the computer system and take out the results from the systems. इसको आप बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में ये समझ सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल हमारे क्लास में 4 स्टूडेंट्स हैं ABCD, एक को सिर्फ हिंदी समझ में आती है, एक को सिर्फ इंग्लिश समझ में आती है, एक को सिर्फ गुजराती ही समझ में आती है. दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस प्रेजेंट इन द कंप्यूटर ऑल्सो. तो जिस तरीके से अगर हमें गुजराती से बात करनी है तो वी शुड नो द गुजराती लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विथ हिम और हर. दैट्स the only concept with computer also. There are several types of languages, and to communicate and get the results from the computer we had to just have the experience and knowledge for that language too. So this is only the concept of computer language जो कि आप लोग को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. इसको बहुत ईजी वे में कह सकते हैं, इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट वी गिव टू द कंप्यूटर. अपनी जो भी भाषा होती है वी ऑल नो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड द लैंग्वेज दैट इज बाइनरी लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ zeros and ones. We all know this very well because we have already studied this, that computer only stand the binary language. So उस binary language से अभी भी काफ़ी सारे जनरेशन्स के लैंग्वेजेस चेंज होते आए हैं. तो ये आपको पॉइंट यही डिस्कस करेगा कि लैंग्वेजेस कितने टाइप के होते हैं, उनको कैसे समझा जाता है, उनको कैसे कन्वर्ट किया जाता है एंड सो ऑन. This chart will make you easy to understand it. There are 4 type of computer language. First is machine level language, second is assembly level language, third is high level language, and fourth is fourth level language, or we can say fourth generation language. We also say machine level language as MLL, second one ALL, third one HLL, and fourth one is 4GL, fourth generation language. So let us see all the level language one by one. Here comes the very first language of the computer, that is machine level language. It is the first generation language, also called binary language, as it contains only of zeros and ones. We have studied earlier that computer understand the binary language. Okay, the programs written in machine language can be executed by CPU directly as no translation is required, because by default जितने भी computers हैं वो बाइनरी लैंग्वेज ही समझते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन से चला आ रहा है. तो कहीं ना कहीं इनबिल्ट ये मशीन लैंग्वेज ही समझते हैं. वो मशीन है, मशीन लेवल लैंग्वेज ही समझेंगे. और भी सारे लेवल के लैंग्वेजेस हैं, बट उनको कंप्यूटर को समझने के लिए बीच में हमें एक कन्वर्टर का यूज़ करना होता है, जो कि अभी आगे की वीडियोस में वी विल जस्ट अंडरस्टैंड दैट. तब तक के लिए अभी ये समझना ज़रूरी है कि दिस इज़ वेरी सिंपल. जो मशीन लैंग्वेज होता है, जो बाइनरी लैंग्वेज, सेम एज इज मशीन लेवल लैंग्वेज ऑल्सो. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर बाइनरी कोड्स. जैसा कि आप जानते हैं कि अगर छोटा सा भी वर्ड ना 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 इस तरीके से लिखना होता है. तो जब तक इसके कोई एक्सपर्टीज़ नहीं होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो कंप्यूटर को जिस तरीके से बनाया गया है, जिस तरीके से आर्किटेक्ट किया गया है, जब तक वो एक एक्सपर्टीज़ नहीं मिलेंगे तब तक ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है इसको ऑपरेट करना, इसको रिमेंबर, इस कोड्स को रखना. Although this language is a machine dependent language, it means that each machine has its own separate language or set of instruction that can be used to run only on that system.
एक सिस्टम का जिस लैंग्वेज से प्रिपेयर किया गया है वो एक ही सिस्टम में वैसे ही रहेगा, उसको उसी तरीके से हमें इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। अगर हम चाहेंगे कि वही इंस्ट्रक्शन हम दूसरे कंप्यूटर में दें तो ये नहीं पॉसिबल है, बिकॉज हर एक मशीन का एक अलग ही होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंसान है, द ह्यूमन बींग्स, हर एक इंसान से सिमिलर तो है नहीं, कुछ ना कुछ चीज़ें डिफरेंस होती हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर में भी होता है। सेकेंड इज असेंबली लेवल लैंग्वेज। दिस इज सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि मशीन लेवल लैंग्वेज इज द फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, दिस इज सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज. They do not use binary digit, but instruction were given in abbreviations. Abbreviations mean short forms, like sum for sum. जैसे कि हमें कुछ एडिशन करना है, ठीक है, आप sum for sum से कंफ्यूज मत हो, एडिशन समझ लो. फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव टू गिव कमांड लाइक एडिशन हमें करवाना है, तो व्हाट वी विल राइट, एडिशन होल, ADDITION, बट हम एक एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं, दैट इज एड, ADD. सेम एज प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट लिखना है तो हमें पूरा प्रोडक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें PROD एक एब्रीविएशन, एक शॉर्ट फॉर्म्स लिख सकते हैं इसमें वो 1010 वाला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. दीज एब्रीविएशंस और शॉर्ट फॉर्म्स, ये जो शॉर्ट फॉर्म्स हम लोगों को असेंबली लैंग्वेज में यूज़ करना होता है, इसे हम लोग कहते हैं निमोनिक्स के नाम से. हेयर M इज साइलेंट, दैट्स वाई वी विल जस्ट pronounce this as mnemonics. Okay, this language is not directly understood by the computer. ये लैंग्वेज कंप्यूटर के द्वारा डायरेक्टली नहीं अंडरस्टूड किया जाता है, बिकॉज कंप्यूटर अंडरस्टैंड जीरोज एंड वंस. क्योंकि वो बहुत डिफ़िकल्ट है, उसको रिमेंबर करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग होता है. इस वजह से सेकेंड जनरेशन में आते आते तक कंप्यूटर अच्छे बने, हर चीज़ अच्छा बना, तो हम लोगों ने लैंग्वेज को भी थोड़ा सा ईजी बना दिया कि जो भी इसको कोड कर रहा है वो अपने सहूलियत के हिसाब से कोड कर दे, बाकी बीच में हम कन्वर्टर लगा देंगे जो कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वो मशीन को हमारा इंस्ट्रक्शन दे देगा. सो दिस ऑल बिकेम जस्ट फॉर द ईजीनेस फॉर द ह्यूमन्स ओनली, कि ज़्यादा बर्डन ना हो, ज़्यादा लोड ना हो, और असेंबली लेवल लैंग्वेज को भी यूज़ करके वी कैन डू द प्रोग्रामिंग एंड वी कैन गिव द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर. इट इज़ ईजी टू राइट ऑल द प्रोग्राम्स इन ALL, क्योंकि अब आप देख ही रहे हो, कोई भी एक वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल टेक एनीथिंग, जैसे एडिशन ही लिया था हमने, और सब्ट्रैक्शन भी ले सकते हैं, तो we have to only use the first 3 letters or first 4 letters, तो it is very easy to do the programming ना. ALL में प्रोग्राम करना बहुत ईजी था, क्योंकि आपको और कोई सिंबल या सिंटैक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू राइट द एब्रीविएशंस. एन असेंबली प्रोग्राम रिटन फॉर वन कंप्यूटर कैन नॉट बी यूज फॉर अनदर कंप्यूटर. इसका ये ड्रॉबैक ये था, जैसे कि मशीन लैंग्वेज है कि हाँ ठीक है, हम लोग देखा, उसको हम लोग ने कन्वर्ट करके उसी भाषा में देख के हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन निकाल लिया. लेकिन एक कंप्यूटर में यूज़ किया होगा, आप जितना भी बड़ा प्रोग्राम टाइप कर लो, लेकिन आप एक कंप्यूटर में एक ही प्रोग्राम खाली यूज़ कर सकते हो, एंड दिस इज़ अ रियली वेरी ड्रॉबैक फॉर द असेंबली लेवल लैंग्वेज. सो प्लीज़ कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड कि अगर कभी भी ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द ड्रॉबैक और व्हाट वाज द लैकनेस ऑफ असेंबली लेवल लैंग्वेज, तो आप ये बता सकते हो. The third level language is high level language, that is HLL. This is third generation language, as we are seeing that was first, then second, now this is third. The language use words from English, numbers and symbols. अब इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल वी कैन गिव, लाइक इफ़ वी हैव टू राइट एनीथिंग, हमें कुछ भी कोड देना है, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी हैव टू गिव टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स, सो हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे, जैसे यूज़ करके हैश का, स्टार का, ये सब यूज़ करके उसके आगे लिख देंगे एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर, और फिर उसको वापस से हैश लगा के, स्टार लगा के, ब्रैकेट लगा के क्लोज कर देंगे. सो ये हाई लेवल लैंग्वेज थे जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में, थर्ड जनरेशन के टाइम पे यूज़ किया गया था. This language is not directly understood by computer as usual. जैसे असेंबली लैंग्वेज
भी नहीं यूज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड कर पाता था कंप्यूटर, उसी तरीके से HLL भी नहीं कर पाता, बिकॉज देयर डिफॉल्ट लैंग्वेज इज मशीन लैंग्वेज. दिस लैंग्वेज कोड्स आर लॉजिकल एंड ईजी टू रिमेंबर. क्योंकि थोड़े से लॉजिकल, इसमें जो भी हमें सिम्बल्स वगैरह यूज़ करना है तो लॉजिक लग जाता है उसमें, कि हैशटैग लगाना है, इसमें स्टार लगाना है, फिर स्टार्ट करना है, यहाँ कॉमा लगाना है. तो जो भी एक्सपर्टीज होते थे ना, जो एकदम से आर्किटेक्ट को जानते हैं, पूरा हर एक चीज़ को नॉलेज चलता है, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से याद करके और बड़े बड़े प्रोग्राम टाइप करके, ये ऑनलाइन मार्केटिंग करके बड़े बड़े वेब पेजेस डिज़ाइन कर देते थे और बहुत सारी चीज़ें होती थी. इसका एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, Java, C++, etc. The codes can be run on any operating system and computer. ये जो जितने भी ये जो मैंने एग्जाम्पल्स अभी दिए हैं, ये किसी भी कंप्यूटर में और किसी भी OS में, ऑपरेटिंग सिस्टम में रन किए जा सकते हैं. कोई बाउंडेशन नहीं है कि अरे आप ये ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रहे हो, ओहो इसमें तो आप यूज़ नहीं कर सकते. नो, नथिंग लाइक दैट. कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स एंड सॉफ्टवेयर कैन बी डेवलप्ड. जैसा कि मैंने कहा कि जावा को या C++ को कुछ भी यूज़ करके हम लोग बहुत लंबे चौड़े प्रोग्राम्स को टाइप करके वेब पेजेस बना देते हैं या बहुत सारे प्रोग्राम रन कर लेते हैं. तो इसको यूज़ करके हम लोग कठिन से कठिन, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्सिज्म भजा हुआ भी जो भी प्रोग्राम्स होते हैं या सॉफ्टवेयर्स होते हैं बड़े से बड़े, उसको हम लोग डेवलप कर सकते हैं. सो दिस इज द पॉइंट फॉर द हाई लेवल लैंग्वेज. Here comes the examples of the all three language. थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजिंग हो गया होगा कि oh God, everything is messed up, we are not able to do the differentiation between all three. So let us make this very easy. Now let's take an example of read. अगर हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम है, नहीं, फॉर एग्जाम्पल वी हैव 3 सिस्टम्स. पहला वाला जो सिस्टम है वो फर्स्ट जनरेशन का है, जिसमें मशीन लेवल लैंग्वेज यूज़ होता है. सेकेंड वाला हमारा सेकेंड जनरेशन का है, जिसमें असेंबली लैंग्वेज यूज़ होता है. और थर्ड वाला थर्ड जनरेशन का है, जिसमें हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ होता है. अगर हमें अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है रीड, तो पहला वाला जो कंप्यूटर है उसको हमें इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा 100101011111101. ये इंस्ट्रक्शन पूरा हमें कोड टाइप करके एंटर करेंगे, तब हमें वो बताएगा कि आपने लिखा था रीड. हम रीड करके दिखाएंगे. दिस इज अबाउट मशीन लैंग्वेज. असेंबली लेवल लैंग्वेज में क्या होगा, वी जस्ट हैव टू राइट द एब्रीविएशन. जो शॉर्ट फॉर्म्स होते थे, तो रीड का रीड ही होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी 4 लेटर्स का ही है. सो वी विल राइट रीड, डायरेक्टली रीड लिख दिया. मतलब इससे इजी तो और कुछ है नहीं. 10010 कौन लिखेगा, कॉमा वॉमा कौन लगाएगा. रीड करना है, हाँ भैया रीड लिख दो, वो रीड कर लेगा. सो दिस इज अबाउट सेकेंड असेंबली लेवल लैंग्वेज. थर्ड इज हाई लेवल लैंग्वेज. जैसा कि हमने कहा था प्रीवियस हाई लेवल लैंग्वेज में कि इफ वी हैव टू टेक आउट द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, तो हमें लिखना पड़ेगा द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स. ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. हमें एक स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है इन दिस हाई लेवल लैंग्वेज. उसके बाद आपको कोई नंबर्स या सिम्बल्स यूज़ करना है तो कर सकते हैं. जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि अगर हमें रीड बोलना है कि वो रीड करके दिखाए, तो वी हैव टू राइट रीड द स्टेटमेंट. उसके आगे पीछे आप जो भी आपका है स्टार लगा दो, डबल कॉमा लगा दो या कॉमा लगा दो, कुछ भी आपको लगाना आप लगा सकते हो. तो मेरे हिसाब से दिस विल मेक यू वेरी क्लियर अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑन ऑल 3 लैंग्वेजेस, जो कि आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा. क्विक रिवीजन करते हैं. मशीन लेवल लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज 0 वाला. असेंबली लेवल लैंग्वेज जो एब्रीविएशन या शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस जो पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं विथ नंबर्स एंड सिंबल्स. ओके, here comes the 4th generation language, the last part of the language, that is 4GL. These languages are also similar to the language we speak, like words and phrases. जिस तरीके से we used to speak, we used to talk, सेम उसी तरीके से हम उसको कमांड देते हैं. मतलब एकदम नॉर्मल, लाइक इज वी आर टाइपिंग द लेटर इन इंग्लिश और हिंदी की, यार मुझे ये रीड करने का, प्लीज़ गिव मी, प्लीज़ रीड दिस स्टेटमेंट, प्लीज़ रीड दिस पोएम, प्लीज़ मुझे एक कहानी पढ़कर सुनाओ. तो एकदम नॉर्मल जो स्टेटमेंट होता है, जो लैंग्वेज वी यूज टू स्पीक, उस हिसाब से वही फ्रेजेस लिख के हम उसे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द हाई लेवल लैंग्वेज एंड 4th जनरेशन लैंग्वेज, दैट इज उसमें हम लोग स्टेटमेंट तो लिखते थे इंग्लिश में, बट हम लोग नंबर्स और सिम्बल्स भी यूज़ करते थे. बट इन दिस इट इज़ नॉट देयर.
we only use the simple language we speak, like the words or the phrases. This language use icon, graphical interfaces and symbolic representation. जैसे कि हम WhatsApp पे चैटिंग करते हैं या फिर किसी को मेल लिखते हैं अगर Gmail से, so we used to just add the icons, graphical interfaces भी हम लोग ऐड कर देते हैं, या फिर कोई symbolic सा कुछ हम लोग भेजते हैं, जैसे ट्रैफिक के ऊपर कुछ भेज रहे हैं तो उसका एक सिंबल भेज दिया, आइकन भेज दिया. सो दिस ऑल जनरेशन लैंग्वेज अंडरस्टूड दिस ओनली. अगर हमें फॉर एग्जाम्पल आज के जनरेशन मतलब फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के जितने भी कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स या कुछ भी आ रहे हैं, इफ़ वी हैव टू सर्च एनीथिंग तो हम लोग क्या नीचे स्टार्ट वाले बटन पे जाके वहाँ पे टाइप कर देते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आ गया, पावर पॉइंट भैया लो हमें ढूंढ के दिखा दिया, हम अपने लैंग्वेज में लिख रहे हैं, वो अपना अंदर ही अंदर समझ रहा है मशीन लैंग्वेज में और हमें तुरंत सा रिजल्ट दे दिया. सो दिस इज ओनली द डिफरेंस कि हम लोग अपने जो भी लैंग्वेज है उस हिसाब से अगर हम लोग चाहें तो ऑपरेट कर सकते हैं. इन दिस लैंग्वेज द यूजर जस्ट टेल्स द सिस्टम व्हाट नीड्स टू बी डन. एग्जाम्पल, ओपन अ फाइल, डिलीट अ फाइल एक्सेट्रा. जैसे कि हम जब भी राइट क्लिक करते हैं रिफ्रेश बटन दबाने के लिए तो उसमें लिखा रहता है क्रिएट न्यू फोल्डर, कॉपी करो, पेस्ट करो, डिलीट करो, अंडू करो, जो भी आता है राइट क्लिक करने पे सब हमारे पास डायलॉग खुल जाता है. सो दिस इज ओनली द फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जो कि ईजिली हम लोग उसको पढ़ सकते हैं, हम लोग उसको बोल सकते हैं अच्छा हाँ इनमें से ये वाला कर दो. सो दिस इज ओनली फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज. द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज इज प्रोलॉग. So this is now homework, please note down. You have to just find out the full form of prologue by using old books with your parents, with your elder brother and sister, or you can take help from internet also. Let me just define one thing, that prologue is an artificial intelligence language. तो AI language जो use होता है जो robots बनाने के लिए या latest technologies में work करने के लिए, वो language है prologue का. And SQL special query language, जनरली टेबल्स जनरेट करने के लिए, बड़े बड़े प्रोग्राम्स को जनरेट, डेटास को रिकॉर्ड, इधर उधर फाइल ट्रांसफर ऐसे वैसे सब कुछ करने के लिए SQL इज द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल एंड वेरी इजी टू ऑपरेट ऑल्सो इफ you have knowledge about this SQL. Now here comes the second sub part of this topic, that is language processor. Now हमने तो सारे लैंग्वेजेस पढ़ लिए हैं, 4 टाइप के लैंग्वेजेस होते हैं, बट लैंग्वेज प्रोसेसर, व्हाट इज दिस न्यू वर्ड फॉर यू ऑल? लेट अस सी. लैंग्वेज प्रोसेसर्स आर द ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स that converts other codes into machine codes so that computer can understand the instruction given. अब जैसे मैंने पहले बोला था कि अपने सहूलियत के हिसाब से ह्यूमन बींग्स ने, ताकि वो ईजिली काम कर सके, उन्होंने मशीन लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज में किया, फिर हाई लेवल लैंग्वेज में किया, जिससे हम लोग अपने हिसाब से टाइप करते हैं. बीच में एक कन्वर्टर, मैंने एक वर्ड यूज किया था कन्वर्टर लगा के, ताकि मशीन समझ पाए. तो वो कन्वर्टर इज एक्चुअली द लैंग्वेज प्रोसेसर, जो हमारे जो अदर कोड्स होते हैं, अदर लैंग्वेज के जो कोड्स होते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट कर देते हैं इनटू मशीन कोड्स, सो दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन गिवन. ताकि हम तो अपने भाषा में अपना इंस्ट्रक्शन दे दिए, लेकिन कंप्यूटर तो बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है, उनकी लैंग्वेज में समझाने के लिए लैंग्वेज प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है. द प्रोग्राम दैट नीड टू बी कन्वर्टेड फ्रॉम असेंबली और HLL, जो प्रोग्राम जो कन्वर्ट किया जाता है असेंबली या हाई लेवल लैंग्वेज से टू मशीन लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड. फॉर एग्जाम्पल 100101 ये करके हम लोग, ये तो हमारा मशीन लैंग्वेज हो गया, सॉरी असेंबली लैंग्वेज हो गया, जैसे सम, ADD, ऐड, प्रोडक्ट का प्रोड, इस तरीके से जो चीज़ें हैं ये प्रोग्राम्स हैं. ये जो कन्वर्ट होंगी मशीन लैंग्वेज में, इसको कहते हैं सोर्स कोड. सोर्स जहाँ से शुरू हो रहा है, हम लोग इसको शुरू कहाँ से कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पहले का सोर्स है, पहले का कोड है, तो इसी पहले के कोड को सोर्स कोड कहा जाता है. यू आर गेटिंग? इसको एक और इजी लैंग्वेज में हम लोग समझ सकते हैं, दैट इज, अगर हमें कोई चीज़ स्टार्ट करनी है, फॉर एग्जाम्पल वी आर स्टार्टिंग वन रेस,
तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यार सोर्स कहाँ से है, कहाँ से ओरिजिन है इसका, मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इसी तरीके से इसमें भी है, जो कन्वर्जन हम लोग कर रहे हैं, ट्रांसलेटिंग हम लोग कर रहे हैं, वो कहाँ से, उसका सोर्स कहाँ से बना, वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वो उसी असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम से हो रहा है। तो दैट्स व्हाई दैट्स प्रोग्राम आर नोन एज सोर्स कोड। फिर जो मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम ऑब्टेन फ्रॉम सोर्स कोड इज ऑब्जेक्ट कोड। हम लोग सोर्स कोड को उठा के कन्वर्ट करते हैं और जो हमें मिलता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड होता है। मतलब हमें एक रिजल्ट मिल गया, एक ऑब्जेक्ट मिल गया जो हमें चाहिए था। हम लोगों ने एक सोर्स डाला और हम लोगों ने ऑब्जेक्ट पाया। वेरी सिंपल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर। Now here comes the 3 parts of the language processor: assembler, interpreter and compiler. When you will see the note, you will find it very easy to be understand. So let us just see in this presentation only. An assembler is a translated program that converts assembly language into a machine code. So इसको बहुत ही आसानी तरीके से समझा जा सकता है। assembler and assembly दोनों कॉमन सा है। तो ये assembler क्या करेगा, assembly language को machine code में चेंज कर देगा। मतलब कि अगर कोई कंप्यूटर है, कोई मशीन है एंड वी आर यूजिंग असेंबली लैंग्वेज, लेकिन मशीन तो मशीन लैंग्वेज समझेगा, तो हमें बीच में असेंबलर, इफ वी विल जस्ट ऐड अ ट्रांसलेटर असेंबलर, तो वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वो कोड कंप्यूटर को देगा, जिससे हमें कंप्यूटर फिर आसानी से आउटपुट या रिजल्ट दे सकते हैं। सेकेंड इज इंटरप्रेटर, एंड इंटरप्रेटर इज अ ट्रांसलेटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। असेंबली लेवल लैंग्वेज था, फिर हाई लेवल लैंग्वेज था। तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज जो थर्ड जनरेशन का लैंग्वेज था उसको मशीन कोड में चेंज कर देगा, लाइन बाय लाइन। ऑल्सो एग्जीक्यूट्स इट्स आफ्टर कन्वर्जन, मतलब एक एक करके ये ट्रांसलेट करेगा, एक साथ ही वो ट्रांसलेट नहीं कर देगा। हम लोगों ने प्रोग्राम डाला, फिर ये एक लाइन को पूरा करेगा, फिर वो देखेगा कि एरर मिल रहा है कि नहीं, फिर उसके बाद वो एरर को ख़त्म करने का सॉल्यूशन देगा, फिर उसके बाद वो लाइन बाय लाइन वो धीरे धीरे काम करेगा। वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय it will convert first instruction of program, execute it, and then second instruction and so on. If there is any error in any of the instructions, then the process of interpretation and execution will stop and will prompt the error. The process will not proceed, तब तक ये process proceed नहीं होगा, further until the errors has been rectified by the programmer. जो प्रोग्राम हम लोगों ने इंस्टॉल किए हैं एज अ इंटरप्रेटर, जब तक वो प्रोग्राम को प्रॉम्प्ट नहीं कर लेता, उसको रेक्टिफाइड नहीं कर देता, तब तक ये आगे प्रोग्राम नहीं बढ़ सकता। मतलब कि इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में करता है, लाइन बाय लाइन करता है, एक साथ ही नहीं कर देता उसको। सेम एज कंपाइलर, दीज आर दी ट्रांसलेटर प्रोग्राम लाइक इंटरप्रेटर ओनली। जो इंटरप्रेटर करता है वो ये भी करता है। अब आप सोचो कि दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ये भी HLL को मशीन कोड में करता है, वो भी HLL को मशीन कोड में करता है, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट दिस प्रोग्राम कन्वर्ट्स द होल प्रोग्राम इन वन गो, एक ही बार में। से वो लाइन बाय लाइन कर रहा था इंटरप्रेटर, बट कंपाइलर क्या है, एक ही बार में हमने अपने लैंग्वेज में डाला और इस प्रोग्राम को रन कर दिया, वो एक बार में सारा चीज़ जो है तुम्हारा कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दे दिया और हमें फटाक से अपना आंसर या अपना आउटपुट मिल गया। The compiler will give a list of errors which programmer must correct before it can be executed. जब आप प्रोग्राम को प्रोग्राम करने के लिए एक बटन दबा दोगे कि वी विल प्रेस द बटन टू प्रोग्राम और द लैंग्वेज टू कन्वर्ट टू ट्रांसलेट, उसके पहले वो मतलब स्कैन करके बता देगा ये एरर है, तो जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट होने से पहले आप एरर ठीक कर लो, तुरंत एंटर करोगे और इन वन गो इट विल ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम। द कंपाइल्ड प्रोग्राम इज़ वेरी फास्ट टू एग्जीक्यूट, क्योंकि ऑलरेडी सारे एरर्स आपके निकल चुके हैं, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, तो ये बहुत ही फास्टली काम करता है कंपेयर टू इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। जो भी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होते हैं उनसे ज़्यादा आसानी कंपाइल्ड प्रोग्राम को यूज़ होता है, क्योंकि सोर्स कोड इज़ ऑलरेडी देयर फॉर द कंपाइल्ड प्रोग्राम। जो सोर्स कोड हमें मिलता है
जो चीज़ हमें कन्वर्ट करनी है वो ऑलरेडी हमारे पास बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से विदाउट एनी एरर हमारे पास पड़ी हुई है, उसमें कोई एरर नहीं है और हमें बस फटाक से इसको ट्रांसलेट करना है। So students, here comes the end of the chapter 1, that is the computer languages and the language processes. तो आपने क्या क्या पढ़ा कि कितने टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड किस तरीके से अपने लैंग्वेज को मशीन के लैंग्वेज में लैंग्वेज प्रोसेसर को यूज़ करके वी कैन जस्ट कन्वर्ट और ट्रांसलेट. So as you all know the task of yourself, that is you have to read the notes, then you have to solve the exercises on your notebook. Till then, please wait for the chapter 2 presentation. Hope you have enjoyed the video. Keep learning, stay home and stay safe.